Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Welcome to our YouTube channel, The Developing Youth. Today we are here with the most awaited and the informative video for all of you, which will guide you in the best way possible. This video is made specially for the freshers and the repeaters. This video will be very beneficial for the students who are worried after the announcement of MDCAT and need proper guidance regarding the syllabus preparation and the stress management. We have two doctors with us from different universities. We have Dr. Khansa from Allama Iqbal Medical College, who will give guidelines to the repeaters and will share her own struggle story that how did she work hard and got into the medical college. So let's get started. Assalamu alaikum, I am Hansa and I am student of MBBS studying in Allama Iqbal Medical College. I was a repeater basically, so मैंने सोचा मैं आपसे कुछ tips share कर दूँ, tips regarding studies, stress management and FSC preparation. क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादातर रिपीटर्स ये डिसाइड करते हैं वो एक दो सब्जेक्ट इम्प्रूव कर लें अलॉन्ग विद देयर एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेशन. So that was my case. I scored 1011 in FSC. So I decided to improve my two subjects. I took a gap of about 2 months after my MDCAT and then started my preparation. I joined KIPS early prep session and decided to improve my concepts which I might not be able to grasp during my first attempt. But वो जो मेरे 2.5 months थे, वो जो मेरे 2.3 months थे, 2 to 3 months थे आई थिंक सो, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ एंट्री टेस्ट पे फोकस किया है. उसमें मैंने अपनी FSC को बिल्कुल भी नहीं किया था. आई स्टार्टेड माई FSC प्रिपरेशन आफ्टर माई अर्ली प्रेप सेशन. So I used to study about 3 to 4 hours during normal days during my early prep session and 7 to 8 hours before every test or FLP. Here I want to make one thing clear. You might have heard from people who have cracked entrance tests to study for about 12 to 14 hours, from 15 to 16 hours. But that was not my case. मैंने अपना खुद का schedule बनाया. I studied according to my own capacity and capability. मुझे ये लगता है कि हर एक की अपनी अपनी मेंटल कैपेबिलिटी होती है. एंड पे जो चीज़ मैटर करती है वो ये करती है कि आपने बेशक 10 आवर्स पढ़ा है या आपने बेशक 2 आवर्स पढ़ा है, आपने एंड पे जो चैप्टर प्रिपेयर किया है आप उसके कितने MCQ सॉल्व करने के काबिल हुए हैं. सो दिस मैटर्स द मोस्ट. If you are giving your 3 to 4 hours to your studies on daily basis, make sure to study with consistency, make sure to study with full concentration. और एक और बात, आपने इस दौरान अपना वाईफाई ऑफ रखना है जब आप पढ़ रहे हो. आपने अपना फ़ोन पावर ऑफ करें, इससे आपकी बहुत अच्छी कंसंट्रेशन बिल्ड होगी. उसके बाद मैंने अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के बाद मैंने FSC की प्रिपरेशन स्टार्ट की. बट 25 days बिफोर माई एग्ज़ाम्स कोविड पॉलिसी फॉर रिपीटर्स एंड फ्रेशर्स वॉज अनाउंस्ड. So I then left my FSC preparation and took a break of about few weeks. Then I joined online regular session of RISE. I joined in session basically to take test. I didn't take much lectures during regular session. I focused on self-study. I solved maximum MCQs. I focused on my weak areas and I used to study 2 or 3 chapters from Mr. Chips or from my English textbook. I used to study about 7 to 8 hours daily and 10 to 12 hours before every test or every FLP during my regular session. I didn't take, basically I took entry test onto my nerves during my first attempt. So I think so that was the main cause of failure. But I didn't take entry test onto my nerves during my second attempt. I gave my best and then left everything to Allah. So I suggest that you should also do the same. एक चीज़ होती है रिग्रेट. आपको कल को रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश आप पढ़ लेते तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते. अपना फुल दें ताकि इनकेस अगर खुदा ना खास्ता आपका कल को दोबारा नहीं होता तो आप ये रिग्रेट ना हो आप में बिल्कुल भी. सो इस रिग्रेट से बचने के लिए अभी अपना फुल फोकस से पढ़ें. आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करें किसी चीज़ पे भी. ये फंक्शंस इवेंट सब कुछ यहीं हैं, सब कुछ यहीं रह जाना है और कल को बहुत आने हैं. लेकिन ये 3 to 4 months आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे, लाइक आपका लाइफ लॉन्ग फ्यूचर. आप यहाँ तो डॉक्टर बनेंगे और यहाँ नहीं बनेंगे. सो सब कुछ, हर एक्टिविटी छोड़ दें इन 3 to 4 months में. आपका सब कुछ होना चाहिए, सिर्फ आपने सोना है और आपने पढ़ना है और बाकी आपने जो ब्रेक होती है खाने के लिए, नमाज के लिए, तहज्जुद पढ़ें और सूरह यासीन पढ़ें सुबह उठते ही. दैट इज़ द की टू सक्सेस. जब मेरा फर्स्ट टाइम मैंने दिया था तो मैं सुबह सूरह यासीन नहीं पढ़ के गई थी और पता नहीं मैंने ऐसे क्यों किया था और ये मुझे पूरा साल इसका रिग्रेट रहा था कि मैंने सूरह यासीन नहीं पढ़ी. लेकिन सेकेंड टाइम मैं ये सब कुछ करके गई थी. सो गाइस, बीइंग अ मुस्लिम हमें इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीफ और ये चीज़ें वाकई करती हैं.
ये बहुत ज़्यादा असर करती हैं आपकी डेली लाइफ पे। सो एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन अल्लाह इन योर सेल्फ। अगर आपका खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, और सब लोगों का आप में कॉन्फिडेंस है, आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। और अगर किसी भी इंसान का आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकेंगे, लेकिन आपका खुद में कॉन्फिडेंस है, तो यू विल श्योरली गोना बी सक्सेसफुल। बाकी एट द एंड आई वुड कंक्लूड इट बाय सेइंग दैट मे यू ऑल क्रैक दिस टेस्ट एंड गेट इनटू योर ड्रीम मेडिकल कॉलेजेस गाइस, एंड बेस्ट ऑफ वेरी 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 लक फॉर NMDCAT 21. And secondly, we have Dr. Farhan from King Edward Medical University, who will guide the freshers that how should they prepare their MDCAT and how did he got into the medical college. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Mohammad Farhan Zafar Bloch. I am studying in King Edward Medical University Lahore. मैं फ़र्स्ट ईयर का तालिब इल्म हूँ MBBS का। मैं आज आपको एज अ फ्रेशर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा MDCAT का, FSC का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बताता चलूँ कि MDCAT और FSC एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। जब हम इन दिनों में थे तो कोरोना आ गया अनएक्सपेक्टेडली, और सारे इंस्टीट्यूट, सारे कॉलेजेस और सब कुछ बंद हो गया। कोई सोर्स नहीं बची थी जिससे हम स्टडी करें उस वक्त। और उस वक्त सिचुएशन भी ये थी कि आप जितना टाइम बुक्स को दे सकते हैं ना, तो वो दे लें, क्योंकि वो सबसे अच्छा टाइम होता है बुक्स के साथ बिताने का। तो आज शायद मैं इसी वजह से किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त तालीम FSC के जो लास्ट दिन थे उनमें अच्छी मेहनत कर ली थी, हार्डवर्क कर लिया था। अब मैं एज अ फ्रेशर आपको बताता चलूँ कि FSC, आप FSC जो फ्रेशर हैं उनको मेरी नसीहत है कि वो, अब मैं देख चुका हूँ कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे, तो उनको मैं तो अपनी सजेशन यही दूंगा कि वो फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपनी FSC को फोकस करें। FSC 50% है, 40% है, जितनी भी है, एक एक नंबर मैटर करता है। तो FSC के लिए मैं कहूँगा कि आप बायो के चैप्टर कर रहे हैं तो फुल चैप्टर रीड करें, लेक्चर्स के नोट्स थे तो वो रीड करें, कोई और नोट्स हैं तो वो रीड करें, उसके बाद आप टेस्ट दें उसका। फिर उसके बाद मैं तो ऐसे किया करता था कि किप्स की ऑब्जेक्टिव सीरीज़ होती थी, उसमें हर चैप्टर के 400-500 MCQs होते थे, वो सॉल्व किए जाते थे। वो सॉल्व अगर बंदा कर लेना तो मैं कहता हूँ कि उसका एक MCQs भी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने बायो का पेपर दिया था, मेरे निगरान ने मुझे पेपर दिया है, वो अभी पीछे 4-5 बच्चों को दे के अभी वापस नहीं आया था कि मैं सॉल्व कर चुका था। वजह ये थी कि मैं सारे के सारे वो MCQs दूसरी तीसरी दफ़ा सॉल्व कर रहा था, क्योंकि मैं पहले सॉल्व कर चुका था। आप इस तरह प्रैक्टिस करें, इसका फ़ायदा आपको MDCAT में भी होगा। MDCAT में 20% ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, 30% हो जाएंगे, 70% बुक की स्टेटमेंट्स होती हैं, और वो ये अगर ये MCQs आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। दूसरी बात, अगर आप ये एक चैप्टर अच्छी तरीके से इस तरह कर रहे हैं तो साथ आप MDCAT को भी लेके चलें। MDCAT के लिए आपको 1 घंटा दरकार होगा उस चैप्टर के लिए। जब आप MDCAT की उस वक्त तैयारी शुरू करेंगे तो उस वक्त आपको काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि FSC का नॉलेज फिर से आपको रिन्यू करना होगा। बट अगर आप अभी ही कर लें तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आप ऐसे करें, किप्स की, स्टेप्स की बुक्स ले लें अभी, और कुछ नहीं, उनको आप FSC का जिस तरह मैंने बताया इस तरह चैप्टर करें। उसके बाद किप्स की, FSC की, स्टेप की, स्टार की प्रेप बुक्स होती हैं, उनको देखें। उनमें 2-4 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो न्यू होंगे, उनको याद करें, उनको समझें। अगर नहीं समझ आती, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, तो उनसे समझें और वो 2-4 पॉइंट अपने नॉलेज में ऐड कर लें। और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस बुक्स होती हैं जिसको तकरीबन हार्डली आधा घंटा लगेगा, और वो आप MCQs सॉल्व करें। MCQs वो सॉल्व करते आपका नॉलेज इतना बूस्ट अप हो जाएगा, आप कहेंगे FSC तो कुछ है भी नहीं, FSC आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। ये 2 घंटे का काम है एक चैप्टर के लिए, और अगर आप अभी नहीं कर सकते तो FSC तो बेहतरीन करें। ये सिर्फ 2 घंटे का काम है। मेरी तो यही सजेशन है, मैं तो ऐसे ही किया करता था कि ये साथ कर लिया जाए। और पैंडेमिक, पैनिक, ये सब कुछ बहुत क्रिएट किया जाता है कि PMC ने ये कर दिया, PMC ने वो कर दिया, PMC बुरी हो गई, PMC ने ऑनलाइन सिस्टम ले आया, PMC ने सिलेबस चेंज कर दिया। ये सब कुछ हमारी बार भी हुआ था। 4-5 दफ़ा सिलेबस आया, सब कुछ हुआ, लेकिन
जो इन बच्चों ने मेहनत की थी वो आज इंस्टीट्यूट्स में बैठे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में बैठे हैं, वो अच्छी जगह पर बैठे हैं, उनकी मेहनत रायगा नहीं गई। ये सिर्फ पैंडेमिक क्रिएट किया जाता है, पैनिक क्रिएट किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करना है। जैसे मैंने बताया कि आप एफएससी का चैप्टर एफएससी के लिहाज से बेहतरीन तरीके से करें, फिर उसके बाद उसको रैप बुक से देखें, 2-4 पॉइंट्स अपने नॉलेज में ऐड करें और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस एमसीक्यूज सॉल्व करें। फिर आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। और इसके साथ आपने ऐसे करना है कि सोशल मीडिया और फ़ोन का इस्तेमाल कम कर दें। सिर्फ 1-2 टीचर बना लें जिनके साथ आपका जिनके साथ जो आपकी हेल्प करें, जो आपका ख्याल रखें। और इसी के साथ साथ आपने ऐसे करना है कि हाँ जी, आपने अफवाहों पर नहीं सुनना। MD-CAT बहुत आसान चीज़ है अगर इसको आसान लिया जाए, वर्क हार्ड किया जाए, बहुत आसान चीज़ है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएं और अफवाहों पर नहीं ध्यान देना। TMC अब बहुत बेहतर हो चुकी है, हमारी दफ़ा तो बहुत हालात ख़राब थे। इस दफ़ा अच्छा सिलेबस अप्रूव हुआ है, इस दफ़ा अच्छे फ़ैसले किए गए हैं। पूरा मंथ मिलेगा आपको, आपकी मर्ज़ी की डेट मिलेगी, आपकी मर्ज़ी का स्टेशन मिलेगा, आपकी मर्ज़ी का सब कुछ हो रहा है। इसमें भी कुछ लोग पेंडेमिक क्रिएट करेंगे, पैनिक क्रिएट करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपने सिर्फ डू और डू नॉट लेकर चलना है। देयर विल बी नो ट्राई, सिर्फ डू और डू नॉट, करना है या नहीं करना, और ट्राई वाली बात कोई नहीं है। हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड ड्रीम्स लीड टू सक्सेस। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नसीब। I hope that this video will have a positive impact on all of you. Good luck to all of you. Keep working hard with consistency and you'll be at your destination, inshallah. If you have any queries related to this, please let us know in the comment section or you can mail us on our email provided here. Subscribe to our channel for more amazing stuff. You can also join our Facebook group where you can get access to admission details regarding different universities in Pakistan. Thank you so much for having me here. Allah Hafiz.